میرا نام کاشی کریم ہے، وقت کی امت کے حوالے سے فیصلہ مرکزہ دیگر خالص کے بارے پوریا چلا رہا ہوں، اور مفتی مولانا صاحب وقت کی امت کے نائب تھے، انہوں نے ان کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، اور تقریباً 1991 سے مختلف تحریکوں کا حصہ رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے ایک 30-32 سالہ مطالعہ کے دوران میں تمام مسالک اور ادیان کا ایک لمبا چوڑا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بعد ایک رائے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، غرچے ہیں تابدار ابھی کی سوئے دجلہ و فرات۔ ایک حسین کو تلاش کیجئے، اس سے کہیے کہ وہ آپ کا لیڈر بنے، اس سے کہیے کہ وہ آپ کا تھنک ٹینک بنائے، اس سے کہیے کہ وہ آپ کے زوال کے اسباب آپ پر آشنا کرے، اس سے کہیے کہ وہ بتائے کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام اور مادیت کے درمیان میں کس طرح جکڑے گئے ہیں، وہ یہ روشناس کرائے اس عوام کو اور ان کے لیڈروں کو اور ان کے سرکردہ لوگوں کو اور ان کو جو عمارتوں کو چاہتے ہیں، جو حب جاہ میں، حب منصب میں، عہدوں میں، عمارتوں میں لیڈری کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، جن کی روحیں آزاد نہیں ہیں، وہ لوگ کبھی بھی آپ کو اس نظام سے آزادی نہیں دلا سکتے ہیں۔ جس عوام کی روحیں آزاد نہیں ہیں، مادیت اور خواہشات نفس کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ ان حالات کو جذباتی طور پر مت لیں، یہ حالات جذباتی نہیں ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک جذباتی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، طاقت کے مراکز ان کو لاتے ہیں، طاقت کے مراکز ان کا گلا دبوچ کے ان کو پھر خود ہی مار دیتے ہیں۔ آپ طاقت کے مراکز سے منحرف ہیں، آپ ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں جب تک آپ اپنے لوگوں کے درمیان میں وضاحت کے ساتھ شعوری طور پر اجاگر نہیں کریں گے، اتنی دیر تک یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے ایک فکری کام۔ دوسرا ہے اس کا عملی کام، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے منہج سے ہٹ کر اگر آپ کوئی اصلاح کا عمل کریں گے، برباد ہو کر رہ جائے گا، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ معروف سیاسی جماعتیں اور معروف دینی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک ایسے شہر کے اندر وابستہ ہیں جہاں دن رات ریشہ دوانیاں اسلام کے خلاف بھی ہوتی ہیں، آپ کے ذہنوں کے خلاف ہوتی ہیں، آپ کی نسلوں کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہی سے ریشہ دوانیاں نکل کر پورے کے پورے پاکستان میں زہر کی طرح پھیل جاتی ہیں، اور آپ کے صحراؤں، دریاؤں، پہاڑ اور آپ کے چولستان کے علاقوں تک وہ زہر پہنچ چکا ہے، اور اب آپ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہاں کہاں میں مرہم رکھوں کہ پورا بدن میرا زخمی ہے، کہاں کہاں میں نہم۔ اس لیے یہ باتیں کہنے کی جو آپ نے فرمائی ہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان سے آشنا نہ ہو، جس نے یہ پہلی بار نہیں ہزاروں بار یہ باتیں ہم سن چکے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو اصلاح کے عمل سے انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ ان باتوں سے پہلے سے آشنا ہے۔ بات اب ہے کہ آپ کی عوام، آپ اور میں عملی طور پر کیا اقدام کر رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ عملاً یہ اس طرح کے اجلاس جیسے 3 سال پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ ہوا، اور اس کا ابھی تک نتیجہ یہ ایک دوسرا اجلاس ہے۔ میرے ساتھ تحریک عظمت اسلام کے ساتھی بیٹھے ہیں، جب جنرل صاحب زندہ تھے، فیصل آباد میں آئے تھے، میں اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا لیکن تحریکوں کا حصہ تھا۔ ڈاکٹر اسرار، میں نے قاضی حسین احمد صاحب سے 1996 میں ملاقات کر کے کہا تھا، یہ کون سی سیاست آپ کر رہے ہیں، یہ کون سی آپ کی اپنی جماعت کے تحریک اسلامی کے لوگ آپ سے الگ ہو گئے ہیں، آپ بتائیے اسلامی سیاست ہے؟ آپ بتائیں یہ کن کی بی ٹیم میں ہیں، یہ کن کا حصہ ہیں؟ اللہ جانے یہ میرے چند لفظ، اللہ جانے آئندہ کیا رنگ لائیں گے میرے لیے، لیکن جب میں یہاں آیا ہوں تو یہ بات لے کر آیا ہوں کہ درد دل آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو پہلے سے درد دل رکھتے ہیں۔ اس درد کا درماں کیا ہے
सवाल ये किया जाए आपसे, इस दर्द का दरमा क्या है? ना कॉलम है, ना स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटीज हैं। आपके लिए यहां कोई किताब और कोई नई चीज लिखने की जरूरत नहीं रह गई है। एक किताब जिससे रसूल इनकलाब लेकर आए, वो किताब आपके यहां मादूम है। अब तो उसकी तलावतें हाथ से जाती रही हैं। अब तो आप वो तरावी के अंदर अगले महीने उसका खात्मा किया जाएगा 29 को पढ़ करके, वो सिर्फ सुनी जाती है और समझी नहीं जा रही है। उस एक इनकलाब से डाकुओं को, शराबियों को, जानियों को, सरमायादारानों को, रोम और ईरान की सल्तनत को उस एक किताब के जरिए से अल्लाह के पैगंबर ने तब्दील करके रख दिया है। और वो एक किताब आपके यहाँ राइज नहीं। बड़े बड़े उलमा से मुलाकात हुई हमारी, हमने सारी जमातों के लीडरों को समेत डॉक्टर इसरार अहमद साहब के, बड़ा ही बुरा लगे आपको, मेरे सामने इकरार किया कि ना मैं हदीस का तालिब इल्म हूँ, ना मैं फिक्र का तालिब इल्म हूँ, ना मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं एक कुरान का तालिब इल्म हूँ। तो मैंने कहा किताब तो आपने हर मौजू पर लिखी है, आपके जो लीडरान हैं उनके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं कि उनका मुताला इतना जय्यद किस्म का हो कि दुनिया को पेश किया जाए। ये इल्मी तौर पर मुफलिस हैं और अमली तौर पर भले कुछ तकवे के मालिक हों, लेकिन तकवा वो चाहिए जिसका म्यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका अपना जाती मनहज, आपकी खुद साख्ता तकवा और उसका तयन, ये तकवा नहीं हो सकता है। मकसद और मनहज खुदा ने तय किया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तय नहीं किया है। आपका ये मकसद क्यों आप बदलना चाहते हैं निज़ाम को? लोग तो नहीं चाहते हैं इस निज़ाम को बदलना। अगर वो चाहते होते तो जो मौजूद पिछली गवर्नमेंट गई है उसके मुकाबले में कितनी दीनी तहरीकें थी, आज तक किसी ने उनका साथ नहीं दिया है। वजह ढूंढे क्यों नहीं दिया है? लोग तब्दीली के हाँ मजहबी तबके के जरिए से नहीं है। क्यों मजहबी तबके का एतमाद उठ गया है और क्यों मजहबी तबका क्यों आज तक अपना एतमाद बना नहीं सका है? लोगों ने उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को तरजीह दी, मुस्लिम लीग को तरजीह दी, तहरीक इंसाफ को तरजीह दी। लोगों ने अपने बद किरदार रहनुमा मान लिए, लेकिन आपके तकवे को दुनिया ने नहीं माना। क्या आपका तकवा खुद साख्ता और कोई ऐसा तो नहीं जिससे लोगों को शक हो गया आपके तकवे पर? दीनी जमातें जब तक अपना एतमाद बहाल नहीं करेंगी उतनी देर तक आप इस अवाम के साथ में नहीं। और ये कोई फर्ज नहीं है, एक बात मैं आपके ऊपर कह दूं कि यहां इंकलाब लाया जाए, ये कोई फर्ज नहीं है। आपका काम है सिर्फ यहां पर एक काम करके दिखाना, जैसे इन्होंने फरमाया कि अब बुनियाद की ईंट बना जाए, कुल्स ना बना जाए, तो बिलाशुबा ये बात सही है। लेकिन इसमें यह अमर भी जाहिर रहे कि हम लोगों को इस बात के मुकल्लिफ नहीं कि बदल के रख दे, हम लोग सिर्फ कोशिश करने के मुकल्लिफ के कोशिश की जाए। जब हम इस बात पर आ जाते हैं कि हम बदल कर ही रहेंगे, तो फिर हम हर उस कबाहत को अपने गले लगाते हैं जो कबाहत अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाई है। आज जमातें जिन मुदाहनतों का शिकार हैं वो यही कबाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इक्तदार तक पहुंचना चाहते हैं और हर वो हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे अवाम का नाम, ये जाहिलों की अवाम, ये बेशऊरों की अवाम, ये बिकने वाली अवाम, ये अयाशिया करने वाली अवाम, ये फहाशी में मुब्तला अवाम, आप उनको दीन की राह दिखाना चाहते हैं। आप तज़किये के बगैर इन लोगों को तख्त पर लाकर बिठाना चाहते हैं। इस उम्मत में जब तज़किये के बगैर तख्ते खिलाफत पर लोग बैठे हैं तो इस आमरियत से भी बदतरीन दिन दिखाए हैं उन्होंने इस्लाम को। ये देखिए, तज़किया जरूरी है अवाम का, और उसके लिए उसको आप उसको बनाइए कि काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। ये इकबाल का शिकवा है और आज भी यही शिकवा अपनी जगह पर बाकी है। आप लाइए, पेश कीजिए उस अवाम को कि एक लीडर जिसके सामने ऐसी चीजें मौजूद हों जिनके साथ आपको उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का कोई अक्स नजर आए। आप देखिए हमारे लीडर जिस तरह से दीनी घूमते फिरते हैं और वो फिर इन कबाहतों को सरमायादारी और मादियत की कबाहतों को साथ ये फिरते हैं, ये नामुमकिन काम है। बातें बहुत खुशकुन हैं, दिल बिल्कुल इन्हीं पर रीझता है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। जो कहा इन्होंने यही हर दिल की पुकार है, हर दिल की आवाज है। लेकिन बात यह है कि अब मामले को आगे बढ़ाया जाए। ये सब बातें हो चुकी, क्या आप ऊपर से इंकलाब लाना चाहते हैं?
जैसा कि आपके मुल्क की एक जमात चाह रही है, या इंकलाब नीचे से ऊपर आया जाता है? आप इस्लाह चाहते हैं, कुरान ने जो टर्म इस्तेमाल की है, या इंकलाब चाहते हैं जिसको कुरान ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया है? आप मनहज से हटेंगे तब भी आप खाई में जाकर गिरेंगे, आप मकसद से हटेंगे तब भी। और इन्होंने जो फरमाया कि बात सारी इसमें है जो हजरत थानवी ने किसी ज़माने में फरमाई थी और अपने दौर के उन तमाम कांग्रेसी और नेशनलिस्ट और दीगर जो मुस्लिम लीग के उस वक्त खिलाफ थे, कि बात सारी खुद को मिटा देने की है। खुद को कोई मिटाना नहीं चाहता है। हर आदमी, इनसे कहिए कि खुद को क्यों नहीं मिटाया जा रहा है। ये बात तो ठीक है कि खुद को मिटा दीजिए, आप ये दवा खा लीजिए, मगर क्यों खाई जाए? क्यों खाई जाए? अगर कोई आदमी खुद को मिटाता नहीं है तो किस बिना पर नहीं मिटा रहा है? उसके तज़किये की जरूरत पड़ी है। तज़किया कोई एक दो दिन का काम नहीं है। तज़किया एक रियाजत, एक मुजाहिदा चाहता है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए इस काम से, लेकिन एक रुख से शुरू कीजिए। ये नहीं कि हर तरफ के आप महाज खोल दें और वही कुछ हो जो आपके साथ हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि पै दर पै हर जमात के टुकड़े होते चले जा रहे हैं, और उसमें यही कि मेरी फिक्र है। और जितने लोगों ने जमातें बनाई हैं, मैंने चेक किया है, या मौजू रवायात होती हैं, मन घड़त होती हैं, खुद साख्ता फहम होते हैं, सलफ सालिहीन से हटा हुआ काम होता है, जिसके नतीजे में फिर ये लोग आपके सामने आते हैं। मैंने ये जमात इसलिए बना दी, डॉक्टर इसरार की जमात में 2 जमातें बनी, फिर 4 बनी, फिर 6 बनी। मैंने उनके उमरा से मुलाकातें की, पता चला इन बेचारों का इल्मी लेवल ही कुछ नहीं है सिवा चंद तकरीरों की। बड़े बड़े उमरा से मैंने मुलाकातें की, मैंने उनसे कहा ये तो हुई तफहीमुल कुरान, और एक फ़हम मुझे आप दीजिए कि आपने कुरान मजीद से इन आयात के बारे में क्या समझा है। तो फिर तफहीमुल कुरान, यानी आप किसी की तफहीम जब मुस्तार लेकर काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या काम करेंगे? बात असल में यह है कि सारे फिरके हमारी आंखों का तारा हैं। मैं मानता हूं, और हमने ये काम का आगाज हमारे उस्ताद ने किया था कि सब कोई इतना बड़ा बहाम नहीं, शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस और इनमें से आगे बढ़कर जाएं तो क्या है, सब मुसलमान हैं, एक हैं, 2-4 बातें हैं। कलामी बहास में गुफ्तगू को बंद करवा दें, फिक्री बहास में जहां किसी का दिल है वो अमल कर ले। रह गई एक आध बात, वो यही है कि अगर आप अमन और निज़ाम चाहते हैं तो 2 चीजें हैं, अवाम के जहन से और अपने जहन से 2 चीजें हम निकाल लें। उमरा भी एक अय्याशी निकाल लें, सरमायादारी निज़ाम की पैदा करदा, जिसको आपके लीडरान लिखते हैं हर जमात के वक्त की जरूरत बन गया है, और एक फहाशी निकाल दें। आप जब तक एक मुआशरत नहीं बनाएंगे, एक मुआशरा कि जिसमें नेक और मुत्तकी और सालिहीन लोग जो एक जहन के हैं, एक सोसाइटी नहीं बना लेते, एक कॉलोनी में नहीं रह लेते, आपका सिस्टम नहीं बन सकता। मैं फैसलाबाद से हूँ, ये लाहौर से हैं, ये पेशावर से हैं, ये कहीं से हैं। जब हम अपनी अपनी जगह पर होते हैं तो हम कतरे होते हैं, जब हम मिल जाते हैं तो फिर हम एक दरिया बन जाते हैं। एक सबब बनाइए, और इसके लिए बहुत हिजरत की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। नबी ने 13 साल अपना सामान इकट्ठा किया। अल्लाह ने कहा प्यारे नबी ये सारा सामान उठाइए, अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को साथ लीजिए और मदीना शरीफ चले जाइए। ये मक्का का सरमायादाराना वहाँ निज़ाम और मादियत पर मबनी मुआशरा छोड़कर मदीना जैसे एक गांव में तशरीफ़ ले जाएं, अपने सहाबा को वहाँ ट्रेन करें। फिर ये मदीना जब पूरी दुनिया पर गालिब आएगा, मक्का गालिब नहीं आया, मक्का गालिब नहीं आया, रसूल 13 साल रहे हैं, मदीना गालिब है और आज तक आपके सीनों के अंदर मदीना है। आप आज भी रियासत मदीना कहते हैं, रियासत मक्का नहीं कहते हैं। मदीना बनाना पड़ेगा अजीजों, और लेकिन मदीना इतनी आसानी से नहीं बना था। जब बना लिया टिक के फिर नहीं उन्होंने बैठने दिया। फिर कभी बदर हो रही है, कभी ओहद हो रही है, कभी खंदक हो रही, हुनैन में पैगंबर जा रहे हैं। एक लम्हे को पैगंबर मुसल्ले से इधर मक्के के मुसल्ले से उतरे हैं, उधर मदीना के अंदर घोड़े पर सवार जिहाद के हो गए, और फिर पैगंबर नहीं उतरे। लेकिन ये बातें अब कहाँ यहाँ पर आपको सुनाई जाएं। तेरे तखय्युल से भी फजूल तर है वो नज़ारा, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर रख लूँ। अल्फाज में मैं तो नक्शा खींच कर रख सकता हूँ, लेकिन इकबाल के तेरे तखय्युल से भी फजूल तर है वो नज़ारा।
तुझे तो वो नजारा और तखय्युल भी तेरा परवाज करके वहां नहीं जा सकता कि वो आसमान जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। आप जिस आसमान के टूटे हुए तारे हैं आप उसका तखय्युल भी नहीं कर सकते। ये कोई जज्बाती बात नहीं है। मैंने 30 साल काम किया है और अभी तक नौजवान तबके के अंदर मैं इल्हाद से लेकर फिरका वारियत तक सिर्फ अपनी सोहबत में बैठाता हूं 5 दिन 7 दिन, जितने दिन वो मेरे पास रह सके, और मैं उसके कल्ब को पाक करने की कोशिश करता हूं कि कुलूब को पाक किया जाए, अज़हान को पाक किया जाए। हमारा मसला इस सोसाइटी का निज़ाम, आप लेकर इस निज़ाम के बारे में गुफ्तगू फरमाते हैं और देखें हमारे लोग जब यहाँ बातें करेंगे कहेंगे निज़ाम कुफर का निज़ाम बुरा है और जमहूरियत बुरी है, और फिर उसके बाद कहेंगे कि उनके मुल्कों के अंदर अदल बहुत अच्छा है, अदल का सिस्टम तो चल सकता है, कुफर का नहीं चल सकता। तो फिर कुफर के निज़ाम ने जो चीज़ देनी थी, जो अवाम की ज़रूरत थी, वो तो मिल रही है, फिर आप खिलाफत किस लिए चिल्ला रहे हैं? अदल ही तो चाहिए था आपको। अब अदल आम है वहां पर, तो फिर कुफर कुछ और सोचिए, इससे आगे बढ़कर सोचिए। ना वो कुफर चाहिए ना हमें वैसा अदल चाहिए। जिनके अदल गरज पर मबनी है, हमारे अदल गर्ज पर मबनी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरज से उठाकर पैगंबर ने अदलत आप फरमाया। अजीजो, खलते मबहस से निकलो, 4-4 5-5 चीजें एक वक्त में ना पेश करो। इधर कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बांध मतीने कुनबा जोड़ा, यूं ना करें। आइए उस दायरे में रहिए जिस दायरे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुक़य्यद करके गए हैं। हम आज़ाद नहीं हैं, हम खुद से सोच नहीं सकते हैं, हमारे अफकार खुद से नहीं बन सकते हैं। हर बात रसूलुल्लाह ने वाज़ेह फरमाई है। जिसको अभी वजाहत नहीं हुई है तो वो तो ये समझता है कि रसूलुल्लाह नाक़िस दीन लेकर गए हैं। नबी नाक़िस दीन ही लेकर गए थे, कामल मुकम्मल इत्माम हुज्जत करके, और 1400 साल तक के लिए 1400 साल तक के लिए दिया, और अब अभी हजारों साल अगर आए क़यामत के उस तक के लिए दिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऐसे इज्तिहाद और इबहाम है जैसे इकबाल ने भी अपने अफकार के अंदर कहा, तो अगर ऐसा ही है तो पैगंबरों की जरूरत बाकी है। पैगंबरों की अगर जरूरत नबूवत बाकी नहीं है तो फिर ये निज़ाम मुकम्मल है। कुछ ऐसा अबहाम ना कीजिए, खलते मबहस से हमें दूर होना चाहिए। इनमें से मैं साथियों की आरा पहले से बहुत से दोस्तों को जानता हूं और कुछ को नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ आज इस वजह से यहाँ पर आया हूँ, बावजूद इसके कि शदीद अलालत, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा था, कि मैं जाकर अब उन लोगों को भी सुनूं जिन्होंने छोटी छोटी जमातें बना रखी हैं। ये सवाल उनसे कीजिए कि जिन लोगों ने जमातें बनाई हैं वो जम क्यों नहीं होना चाहते एक दूसरे के अंदर। आज 1 मिनट के लिए जम होना को घंटे लगते हैं। जम होने को तो सिर्फ यही है कि उठकर खड़े होकर कह दिया जाए कि मैं अपनी जमात को तोड़कर इनमें जम करता हूं, मैं अपने आप को तोड़कर इनके हवाले करता हूं। ये ऐलान है, लेकिन इस ऐलान करने को वो हौसला चाहिए। कहीं आप डायरेक्टर हैं, कहीं आप कय्यम हैं, कहीं आप नाजिम हैं, आपके शुरू में अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िम फलां जमात का, मैं अस्सलाम मैं कय्यम फलां जमात का, मैं फलां का अमीर। ये ले डूबा है कि ये अस्सलाम अलैकुम मुझे इम्तियाज कहते हैं, अस्सलाम अलैकुम मैं काशिफ हूं, ये इस्माइल है। ये आपके अलकाब जो आपको लोगों ने दे रखे हैं, जो आपकी जमातों ने आपको सिर्फ इसलिए दे रखे हैं ताकि ये उकसाहट के आलम में आकर काम करता रहे उम्र भर, चाहे वो उसका हासिल ही कुछ ना हो। अपने आप को इन ओहदों से दूर कीजिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती होने का टाइटल काफी है आपके लिए। ये क्या कम है कि हशर के दिन वो आपको बुलाकर खुदा की बारगाह में कहे कि इसके हिसाब में आसानी फरमाई जाए कि ये मेरा उम्मती है। इससे पहले कि रसूल फरमाए कि ये मुझको पहचानते मैं इनको पहचानता और दरमियान में दीवार हो जाए, रसूलुल्लाह ने कहा मेरे उम्मती मुझे पहचानेंगे, बुखारी शरीफ की हदीस, और मैं उनको पहचानूंगा, लेकिन किस वजह से कि वो मुत्तकी परहेजगार नजर आएंगे। लेकिन एक वक्त में आएगा मेरे और उनके दरमियान में पर्दा हो जाएगा। कहा जाएगा इन्होंने आपकी वफात के बाद और दीन के पहुंच जाने के बाद इन लोगों ने नई नई बिदतें ईजाद की हैं। ये बिदतें जमातें हैं जो आपने बना रखी हैं। कभी एक बिदत में दाखिल होते हैं, ना हो कि रोजे हशर आप सोहकन कहकर दूर कर दिए जाएं। ऐसा ना हो जाए। डरिए उस वक्त से, दिलों को कहिए कि तुम खशियत में आ जाओ, इन दिमागों को कहो कि खौफे खुदा में आ जाओ।
اپنے آپ کو ڈھال دو، گرا دو، خود کو مٹاؤ گے تو انشاءاللہ محمد عربی کا جھنڈا بلند نظر ہوتا تمہیں نظر آئے گا، توحید کا نور اتمام میں آ جائے گا۔ خود کو اجاگر کرو گے تو یہ جھنڈا کبھی آسمانوں کی بلندی پر نہیں جائے گا۔ اپنے اوصاف، اپنی ایبلٹیز، اپنی قابلیتیں، اپنی صلاحیتیں، ان کو رسول اللہ کی قدموں میں دان کر دو تو تم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ گے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ پھر کہتا ہوں، قافلہ یہ گردن کٹی ہوئی ہوتی ان عمرہ کی، جو دینی جماعتیں اور اسلامی ہے نا، اس وقت اس باطل نظام کو آپ کو پتہ ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ کی گردنیں کٹی ہوئی ہوتی، جو گردنیں نہیں نہ کٹی، آپ ابھی حسین نہیں ہوئے ہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، غرچے ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، گیسوئے دجلہ و فرات، ابھی ہے سب کچھ کرنے کا، مگر قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔